ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਆਫ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਨੀਡ ਆਫ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਨਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਸਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ? So in physics we will say that something that can be measured, or the quantity, a quantity which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in form of laws are called as physical quantity। ਸੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੈਂਥ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ, ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਾ, ਐਟਸੈਕਟਰਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ, ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ। ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲਵ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਮੈਜ਼ਰਡ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਸੋ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਪਣਾ ਜਾਂ ਮਾਪਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੀਤਾ ਕੱਢਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 3 ਮੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਨਰਲੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 5-5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ 5 ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟਸ। ਸੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ? ਸੋ ਵਿਦ ਦ ਚੂਜ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ,
स्टैंडर्ड ऑफ सेम काइंड ठीक है। तो ये जो चोजन स्टैंडर्ड है वा दिस चोजन स्टैंडर्ड दैट इज़ यूज्ड एज रेफरेंस, सो दिस विल बी यूज्ड एज रेफरेंस and this is called as the unit. This is called as the unit. So now what is unit? So unit है क्या? So it is the standard of same kind taken as or chosen as reference in order to measure a physical quantity is called as the unit of that thing. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟ. ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ is represented completely by its magnitude. मैगनीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है एंड यूनिट. कहने का भाव कि किसी भी क्वांटिटी को मैं दो टर्म्स के लिखांगा दैट इज़ n मल्टीप्लाई u. सो वेयर दिस n इज़ द मैगनीट्यूड, दिस n इज़ द मैगनीट्यूड एंड दिस u इज़ द यूनिट. मतलब मैं किस चीज़ की गल कर रहा. फॉर एग्जाम्पल मैं गल करा 10 मीटर. सो दिस 10 इज़ द काउंट है ना, मैग्नीट्यूड. दिस 10 इज़ द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू आई एम सेइंग. एंड व्हाट इज दिस मीटर नाउ? सो मीटर इज सम स्टैंडर्ड. सो यानी कि जे मैं किसी को 10 मीटर देना है तो मैं 10 मीटर कपड़ा वगैरह कुछ भी देना है तो मैं की कराँगा एस एग्जिस्टिंग मीटर के नाल नाप के 10 मीटर में कपड़ा दे देवांगा. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट इज यूज्ड. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड यूज्ड एज रेफरेंस. आप इस चीज़ की क्या आप इस चीज़ क्या की है यूनिट. ठीक है यूनिट 10 मीटर. उसी तरह तुम कह लो 5 kg. सो 5 किलोग्राम मतलब कहने का भाव. सो 5 की है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई तो kg की है जी भी चीज़ के नाल मैं कंपेयर करने की कोशिश की है. सो दैट दिस इज़ द स्टैंडर्ड एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर मास. सो आप की करांगे एक मान लो कि मैं किसी दुकान पर गया मैं कहा कि मैंने 5 किलो खंड चाहिए है. सो की करेगा एक kg का एक वट्टा कढ़ेगा तो उस चीज़ नाल कंपेयर करके मैंने 5 kg खंड दे देगा. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट इज़ बीइंग यूज टू कंपेयर द क्वांटिटी. सो इसे चीज़ ही आप मेजरमेंट कह दें. सो इतने सानू दो चीज़ों की लड़ पैंदी है, एक की है द मैगनीट्यूड, दूसरा की है द यूनिट. हुण इस चीज़ को लिखण दे विच असीं हुण देखिए जदों असीं क्वांटिटीज़ नूं की करना होंदा है कन्वर्ट करना होंदा है आपां की करना है चेंज करना है. मान लो कि जिद्दां असीं किलोग्राम नूं ग्राम 'च चेंज करना है. सो तुहानूं शायद पता ही होवे आपां कहने हैं कि 1 किलोग्राम है ना इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. सो देखो आ जी kg यूनिट आ ये वड्डी है तो ग्राम जी है छोटी है. सो जो आप इन्होंने दोनों कंपेयर करना तो मैं कहना कि ये दोनों की हुण बराबर है ना. सानू इक्वैलिटी वास्ते की करांगे तो जो काउंट वधदा है काउंट वधदा मीनस इत्थे n वधिया सो फिर उदों यूनिट की आ जाएगी स्मॉल तो जो n घटिया उदों यूनिट की आ जाएगी वड्डी. सो टू चेंज द क्वांटिटीज़ एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म के जो आप चेंज करना है तो देखो आप इस चीज़ का ध्यान रखना n मल्टीप्लाई u जोड़ा ये की होना चाहिए वा कॉन्सटेंट. ये की होना चाहिए कॉन्सटेंट यानी कि n1 u1 इक्वल टू आप कहिए दूसरी क्वांटिटी n2 u2. सो जे मैं इक्वैलिटी चाहना है तो मैं कਹਾਂ कि kg के ग्राम के है ना 1 kg के कितने ग्राम 1 kg कितने ग्राम यानी कि मैं n2 फाइंड करना n2 मैं फाइंड करना तो मैं की कहांगा n1. सो ये बन जाएगा हम n1 u1 ओवर u2. ये बन जाएगा n2. सो n1 मैं फिलहाल इन्हों इसे ही एग्जाम्पल लैके चलदा पाया. सो इतने n कितना हो गया 1. u1 जी यूनिट 1 मैं यूज़ की सी kg तो जी मैं यूनिट 2 यूज़ की वो ग्राम. आ सीगा किलोग्राम तो आ सीगा ग्राम. ये बन गया n2. देखो जो किलो वर्ड आ दिस किलो बीइंग
used for 1000। सो इत्थे ये जी चीज़ है ये रिप्रजेंट करेगी 1000। सो दिस किलो, किलो मीनस 1000। ये आ गया 1000, यूनिट बन गई ग्राम ओवर ग्राम। सो दोनों कट्टे जाने हैं। सो N2 की जी वैल्यू है वो आ जानी है 1000। सो मतलब ये है कि जो असी दो क्वांटिटीज़ में कंपेयर करना, मतलब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के आप चेंज करना है, तो उदों आप फिर इस रिलेशन का यूज़ करेंगे N1U1 इक्वल टू N2U2। उस तो बाद टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ने टाइप्स। देखो जी पहली क्वांटिटी है दैट इज़ कंपैरिजन और दैट इज़ द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। सो मतलब पहली तरह दी जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज़ होंदियां दोज आर द रेशियोज़। सो जिहड़ियां भी रेशियो वाली क्वांटिटीज़ होंदियां ने उहदे विच हमेशा ही न्यूमैरिकल वैल्यू ही होंदी है, न्यूमैरिकल वैल्यू ओनली। क्योंकि शायद तुसीं जानते ही हो कि जो असीं रेशियो की गल करते हैं, रेशियो का मतलब होंदा है कि असीं दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को की करते हैं डिवाइड करते हैं, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को करते हैं डिवाइड करते हैं। सो इस तरह दी जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज़ ने, मान लो यदा एग्जाम्पल है, मान लो आप कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, की कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होंदा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो जो आप इन दोनों चीज़ों डिवाइड कर दें तो सानू जी भी क्वांटिटी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव का मतलब ये है कि असीं दूसरी क्वांटिटी नाल की कीता, कंपेयर किया। सो देखो जो दोवें डेंसिटीज़ ने, यानी कि उपर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो डिनोमीनेटर में डेंसिटी ऑफ वाटर है। सो दोनों के यूनिट सेम होनियां ने, दोनों ने कैंसल आउट हो जाने, तो इत्थे सानू टाइप ऑफ क्वांटिटी के की मिलेगा, कल्ली न्यूमैरिकल वैल्यू ही मिलेगी। तो इस तरह दी क्वांटिटीज़ की होंदी है केवल न्यूमैरिकल वैल्यू ही होंदी है। उस तो बाद जी सैकेंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है वो आ जाता वा स्केलर। स्केलर का मतलब ये भी केवल मैगनीट्यूड, केवल मैगनीट्यूड, नो डायरैक्शन। सो क्वांटिटी के कोल डायरैक्शन ना हो उन्होंने क्वांटिटीज़ आप कहने स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल ये आप कह लीए लेंथ। सो मैं कहूँ लेंथ नाप दो। सो लेंथ तुम जिधर मर्जी नाप सकते हो, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर जिस तरह की है ना। टाइम, सो टाइम इज़ ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। मैं किसी भी पास नहीं जावा, टाइम ने 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट इसी तरह ही बढ़ना है। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद टाइम, इट इज़ नॉट रिलेटेड सॉरी डायरैक्शन। सो डायरैक्शनस की जो असीं गल ना करिए, असीं केवल तो केवल मैगनीट्यूड की गल करिए। सो दोज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज़। उस तो बाद अगली टाइप दी क्वांटिटीज़ होंदियां ने, दोज आर कॉल्ड एज वैक्टर क्वांटिटीज़, आर कॉल्ड एज वैक्टर क्वांटिटी। सो वैक्टर के कोल दोवें चीज़ां होणगियां कि मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन, मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन। सो जिन्हां दे कोल मैगनीट्यूड भी होवे ते डायरैक्शन भी होवे। फॉर एग्जाम्पल आप कह दिए, मैं गल करता पाया डिसप्लेसमेंट। देखो डिसप्लेसमेंट जो वर्ड है, डिसप्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ अलॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरैक्शन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरैक्शन। सो एग्जाम्पल आ जाएगा डिसप्लेसमेंट। सो ये डायरैक्शन तो बिना आप गल नहीं कर सकते। यानी कि मान लो मैं कਹਾਂ तुसीं चलो 5 मीटर, तो मैंने डायरैक्शन दसना पवेगा टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरह दी क्वांटिटीज़ आप कह दें वैक्टर क्वांटिटीज़। इतने मैगनीट्यूड भी हो गया तो नाल दी नाल की हो गया डायरैक्शन भी हो गया। एक्सीलरेशन, फोर्स, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्टर क्वांटिटीज़। सो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ आप 3 तरह दी क्वांटिटीज़ देखिए ने, रेशियो बेस्ड, स्केलर ते वैक्टर। उस तो बाद अगला टॉपिक आंदा साडे कोल होर कंपैरिजन वास्ते आपां दे कोल 2 तरह दी क्वांटिटीज़ ने। वन इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्होंने असी किसी दूसरे के टर्म के एक्सप्रैस नहीं कर सकते, किसी दूसरे के टर्म्स एक्सप्रैस आप नहीं कर सकते। दूसरे के टर्म्स एक्सप्रैस करना मतलब ये एग्जिस्ट करदियां ने इंडिपेंडेंटली, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटीज़।
यानी कि इन्हों असी बनाने वास्ते जिदा मान लो कि लेंथ ही है ना, सो आप लेंथ के केवल तो केवल लेंथ की गल करांगे, आप किसी दूसरी चीज़ की गल नहीं करांगे। दूसरी तरह की जो क्वांटिटीज़ होंदियां ने दोज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। सो डिराइव्ड का मतलब विच आर डिराइव्ड फ्रॉम और ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वंस अगेन देखो मैनिपुलेशन किसी भी तरह ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाल असीं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके सानूं जिहड़ियां क्वांटिटीज़ मिलदियां ने। इहदे विच देखो एग्जाम्पल मैं तुहानूं दवां, आपां गल करिए एग्जाम्पल है एरिया की यूनिट जिहड़ी हुंदी है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। एरिया का बेसिक फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। सो लेंथ इज़ ऑल्सो मेजर इन मीटर्स एंड ब्रैथ इज़ ऑल्सो मेजर इन मीटर्स। सो इहदी यूनिट की बन जानी है मीटर स्क्वायर। सो हेयर दिस लेंथ दी स्टैंडर्ड जिहड़ी यूनिट आ दैट विल बी द फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट है। उस तरह मैं गल करा फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला होंदा है मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। मास में असीं मेजर करते हैं kg च, एक्सीलरेशन असीं मेजर करते हैं मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। सो देखो ये क्वांटिटीज़ नूं असीं मल्टीप्लाई वगैरह करके तो यूनिट नूं डिराइव करने की कोशिश करते पे हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मीनस टू ऑब्टेन दीज यूनिट्स वी यूज़ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो ये यूनिट बन जाएगी kg मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। नो डाउट आप नाम दिता है न्यूटन का। सो दिस इज इक्वल टू न्यूटन। हुण फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है किहड़ियां जिन्होंने आप दूसरे के टर्म के एक्सप्रैस नहीं कर सकते। प्लीज़ रिमैंबर ये 7 तरह दी 7 क्वांटिटीज़ ने जिहड़ियां नूं आपां फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहने हैं। सो मैं इन्हूं याद करदा ना MLTT LCA, MLTT LCA। This M stands for mass, L stands for length, T stands for time, this T stands for temperature, this L stands for luminous intensity, चमक, this C stands for current, and this A stands for amount of substance, So these are the 7 fundamental quantities। तो इस तो अलावा जिहड़ियां बाकी quantities होंदियां ने those are obtained from these fundamental quantities। So these quantities cannot be expressed in terms of another quantities। For example मैं दुकान ते जाके ये कह देवां कि मैनू 5 मीटर खंड दे दिओ, 5 मीटर खंड। सो देखो तुसीं जानते हो कि खंड दा 5 मीटर खंड का कोई तुक नहीं बनता। सो सानू जो खंड चाहिए मैनू उन्होंने कहना पेगा kg, क्योंकि मैं मास की गल करता पाया। सो मास कैन नॉट बी एक्सप्रैस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड सो ऑन। सो हेयर दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इन्हां 7 की ही यूनिट तुसीं याद रखनी है। मास इज एक्सप्रैस्ड इन kg, दीज आर SI यूनिट स्टैंडर्ड। लेंथ इज यूज्ड इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, टेंपरेचर इन कैलविन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडला CD का सिंबल आ, करंट इज मेजर्ड इन एम्पीयर, इसका सिंबल A ही आ। तो अमाउंट ऑफ सबसटेंस इज मेजर्ड इन मोल, सो इट इज़ यूज्ड एज MOL। सो kg मास की SI यूनिट है, मीटर लेंथ की आ, टाइम की यूनिट S आ, टेंपरेचर की कैलविन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, करंट की एम्पीयर, तो अमाउंट ऑफ सबसटेंस की मोल। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। बाकी जिहड़ियां भी क्वांटिटीज़ ने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ने उन्होंने यूनिट्स आप डिराइव इन्हां तो ही कर लवांगे। इन्हां चीज़ों बारे आप गल अपनी अगली क्लास करांगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।